ઇન્ડસ યુનિવર્સિટીનો 10મો દીક્ષાંત સમારોહ યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં વિદ્યાર્થીઓને ડિગ્રી એનાયત કરવામાં આવી હતી. ઇન્ડસ યુનિવર્સિટીનો 10મો દીક્ષાંત સમારોહ રાંચરડા કેમ્પસ ખાતે યોજવામાં આવ્યો હતો. યુનિવર્સિટી મુજબ આ વર્ષે વિવિધ કોર્સના કુલ 1248 વિદ્યાર્થીઓને યુજી, 327 વિદ્યાર્થીઓને પીજી તથા 8 વિદ્યાર્થીઓને પીએચડીની ડિગ્રી વિતરણ કરવામાં આવી. સાથે સાથે વિવિધ કોર્સના 18 વિદ્યાર્થીઓને ગોલ્ડ મેડલ, 6 વિદ્યાર્થીઓને મેમોરિયલ એવોર્ડ્સનું વિતરણ પણ કરવામાં આવ્યું. 5 ડિસેમ્બરે સાંજે 6 વાગ્યે દીક્ષાંત શોભાયાત્રાથી કાર્યક્રમનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે મુખ્ય અતિથિ તરીકે અદાણી ગ્રુપના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ BS રાવ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જ્યારે ગેસ્ટ ઓફ ઓનર તરીકે સૂચિ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ફાઉન્ડર અને ચેરમેન અશોક મહેતાએ હાજરી આપી હતી. 6 ડિસેમ્બરના રોજ કેમ્પસમાં ઇન્ડસ એડવાન્સ ગ્રીન નેનો ટેકનોલોજી ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો ઉદ્ઘાટન સમારોહ યોજાયો. મુખ્ય અતિથિ તરીકે પદ્મશ્રી અને પદ્મભૂષણ તથા પ્રખ્યાત હૃદયરોગ નિષ્ણાત ડોક્ટર તેજસ પટેલ અને ગેસ્ટ ઓફ ઓનર તરીકે ડોક્ટર KS નાગેશ, JSS ડેન્ટલ કોલેજ, મૈસૂર વગેરે હાજર રહ્યા હતા. કદંબા સોસાયટીના ચેરમેન ડોક્ટર અનંતકુમાર હેગડે અને યુનિવર્સિટી ઓફ મૈસૂરીના નેનો વિજ્ઞાન વિશેષજ્ઞ તથા કેન્સર સ્પેશિયાલિસ્ટ ડોક્ટર કટ્ટી શિવવી કટ્ટી સહિતના મહેમાનો ઉપસ્થિત રહ્યા. યુનિવર્સિટી મુજબ ગ્રીન નેનો ટેકનોલોજી સંશોધનને નવી દિશા આપશે અને કેન્સર ઉપરાંત અનેક રોગોના ઉપચાર માટે આ નવી ટેકનોલોજી ખૂબ જ મદદગાર બની રહેશે. દીક્ષાંત સમારોહ કાર્યક્રમમાં વાર્ષિક અહેવાલ, માનદ ડોક્ટરેટ, સ્કોલાસ્ટિક મેડલ્સ અને વિવિધ ડિગ્રીનું વિતરણ વગેરે કરવામાં આવ્યું. આ દીક્ષાંત સમારોહમાં ઇન્ડસ યુનિવર્સિટીના પ્રેસિડેન્ટ સેક્રેટરીએટ ડોક્ટર નાગેશ ભંડારી, ડોક્ટર રીતુ ભંડારી, રાધિકા ભંડારી, બોર્ડ ઓફ મેનેજમેન્ટ, બોર્ડ ઓફ ગવર્નર્સના સભ્યો સહિત विविध क्षेत्र अनेक महानुभाव पर उपस्थित रहा था. करना चाहता हूँ, उन्होंने इतना अच्छा यूनिवर्सिटी बनाया है जहाँ करिकुलम जो है उसको इंडोलॉजी के साथ कंबाइन करके फ्यूचर स्टूडेंट्स को शेप कर रहे हैं, विच आई थिंक इज़ अ फैंटास्टिक जॉब. चाहे वो एविएशन हो, मैनेजमेंट साइंसेस हो, वेदर इट इज़ अबाउट फैशन डिज़ाइन, वेदर इट इज़ अबाउट आर्किटेक्चर. हमें लगता है हमारे देश में ये पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर बच्चे इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के साथ साथ आउटलाइन करिकुलम एंड सिलेबस दोनों कंबाइंड करके दे आर एक्चुअली एनरिचिंग द नॉलेज. मुझे लगता है ऐसे ही बहुत से यूनिवर्सिटीज़ को दे विल हैव टू फॉलो व्हाट इंडस यूनिवर्सिटी इज डूइंग. दूसरी बात यह है कि हमारी जो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स हैं उसको इंटीग्रेट करना चाहिए हमारे करिकुलम में, विच ऑफ कोर्स हमारी जो करंट गवर्नमेंट है, they have taken a lot of good steps in the similar space with IKS. मुझे लगता है कि Indian University perhaps is the only university which has integrated IKS her field of education. So I would therefore like to congratulate Dr. Bhandari and also bless all the graduates जो आज convocation में graduate हो रहे हैं, चाहे वो doctorate हो, master's degree holders हो, bachelors हो. एंड मैं यही चाहता हूँ कि ये जो इंडियन नॉलेज सिस्टम के साथ जो ग्रेजुएशन हो रहा है इनका, वेदर इट्स अ माइनर एंड देन द मेजर, दे कैन गो बैक एंड कंट्रीब्यूट टू द नेशन इन अ बिग वे. बिकॉज हमें विकसित भारत के लिए इस तरह की सोच ज़रूरत है. अगर हमारा देश $30 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनना चाहिए तो इस तरह के जो बाई प्रोडक्ट्स है या फिर फिनिश प्रोडक्ट्स है जो स्टूडेंट्स इस तरह से पास होते हैं, दे विल एक्चुअली गो इनटू वेरियस फील्ड्स, वेदर इट्स आर्मी, वेदर इट इज़ एविएशन, whether it is manufacturing, whether it is management, चाहे वो पहले CEO बने या CO बने, प्लांट हेड बने या फिर ऑपरेशंस हेड बने, मुझे लगता है इस तरह की जो एजुकेशन उनको मिलेगी, they will actually be able to contribute to the nation building. So thank you very much. Chairman Suchi Semicon, Surat. First of all, congratulations to Dr. Bhandari ji and whole the management team and द स्टूडेंट्स जो आज अपनी डिग्री ले रहे हैं, सबको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस. आज इस यूनिवर्सिटी में आकर जो मैंने देखा, आने वाला भविष्य है टेक्नोलॉजी का, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है इस देश को टेक्नोलॉजी के लिए आत्मनिर्भर बनाने का, और उस टेक्नोलॉजी को पूरा करने के लिए इंडस यूनिवर्सिटी जो कोर्सेज जो लॉन्च किए हैं, आज इंडिया में ऐसी पहली यूनिवर्सिटी है जो डिफेंस, एरोस्पेस और इस टाइप की सारी डिग्रीज का सारा एक जगह पर पूरा काम
सब बच्चों को सिखाने का जो कर रहे हैं, आने वाला भविष्य टेक्नोलॉजी का है। और उसी के लिए आज मेरे को खुद को इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री से आ रहा हूँ। और सूची सेमिकॉन एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जो इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप्स का पहला प्लांट हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया। और लास्ट टाइम सेमिकॉन जब गुजरात गांधीनगर में हुआ था, तब हमने अपनी पहली चिप्स लॉन्च की थी। और बिना सेमीकंडक्टर चिप्स के कोई इलेक्ट्रॉनिक्स काम कर नहीं सकता, चाहे आपका मीडिया हो, चाहे आपका मोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज हो। और उस फील्ड में ये सारा काम करने वाले नई जनरेशन है, नई सोच है, और वही सोच को आप तैयार कर रहे हैं। उसके लिए इस इंडस यूनिवर्सिटी के पूरे मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। एक और प्रसन्नता की बात है कि कल हम 6 तारीख को सवेरे एक विभिन्न प्रकार की एक अलग ही प्रकार की एक इंस्टीट्यूट का प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसका नाम है इंडस एडवांस ग्रीन नैनो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जिसमें कि आपने नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन इस टेक्नोलॉजी में, इस इंस्टीट्यूट के अंदर हम जो प्लांट के एक्सट्रैक्ट होते हैं उससे हम नैनो पार्टिकल्स बनाएंगे, जिसमें कि किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होगा और उसमें ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट होगा। और इस ग्रीन नैनो टेक्नोलॉजी से हम विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि मेडिसिन में है तो हम एंटीबायोटिक्स, एंटी कैंसर ड्रग्स, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स और डायग्नोस्टिक एजेंट्स बना सकते हैं। इंडस्ट्री के अंदर हम ऑटोमोबाइल हो, एविएशन हो या किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री हो, उसके अंदर हम ग्रीन नैनो पार्टिकल्स को यूज़ करके उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। और एग्रीकल्चर में या फूड इंडस्ट्री में हम उसको धरती में डाल के उसकी उर्वरा शक्ति को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भारत की, या कहें एक प्रकार से एशिया में पहली इस प्रकार की इंस्टीट्यूट होगी जो कि हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो हमारी एक मतलब बेसिकली हमारा एक इंडस्ट्री के साथ में पार्टनरशिप है, जिसके साथ हम मिलकर काम करें। इसमें रिसर्च करना रहेगा, अलग अलग विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स को हमको डेवलप करना होगा, और इससे लोगों को अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री प्रारंभ करने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद।